2047 तक विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करना है। इसके लिए हमें नेतृत्व की आवश्यकता। An entire nation's was national. Phones stop, press stop, freedom stops, and India had its freedom. But today, I'm not here to whisper about that fear. I'm here to roar about the fire that rose for me. My code is number one. And I belong to the land where we learn only one thing: झुकना नहीं, सच के लिए रुकना नहीं. In 1935, emergency was not an attack by armies. It was an attack on courage. Leaders were dragged from the homes. Students were threatened. Voices were chopped. But when the government tried to silence India started speaking through its courage. Because truth doesn't need a microphone. It needs a heartbeat. And every heartbeat of this nation was shouting, "We will not need." Imagine a mother telling her child, "Beta, sach bolo aur samajh ke." Imagine a journalist typing truth on a hidden typewriter, knowing one wrong word could mean jail. Imagine a young student whispering his friend, "हम चुप रह सकते हैं पर गलत के साथ." Those whispers became thunder, and those whispers fought back the sun after 21 months of darkness. But what about today? Today's chains don't rattle; they are digital. Today's attacks don't shout; they are psychological. In 1975, voices were silenced by force, but today they are drowned under misinformation. In 1975, newspapers were censored, but today minds are censored by followers. In 1975, truth is locked, but today it's buried in the noise without knowledge. And the worst part, people don't even realize it. Today's danger isn't loud; it's quite comfortable. And the moment people stop questioning, power stops listening. That's why today's youth must remain not furious but focused, not reckless but responsible, not passive but participating. Because the nation doesn't fall when the power rises; it falls when the citizens stop scaring. So, today, 50 years later, I stand here with a promise, not as a speaker. कुटिल कर रहे केशव कुलदीप कीर्ति कलंकित कह कैदी कविराय तोड़ कानूनी कारा गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। ये पंक्तियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हैं जब 21 महीनों तक देश इमरजेंसी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब काली थी वो रात, आवाजें कैद थी, मौन थी कलम और सच्चाई अखैर थी। मगर सुबह आई तो जनता ने दिखा दिया कि भारत का लोकतंत्र कभी हारता नहीं, बस परखता है। Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Today I am representing my views on topic 50 years of emergency, lesson for Indian democracy. The President has proclaimed emergency. There is nothing to be panic. ये आवाज थी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की और शुरुआत थी भारतीय लोकतंत्र के चिन्हरण की। Terror was unleashed by her to save her seat. क्या नहीं हुआ उस अंधेरे दौर में? फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई, राजनीतिक विरोधों का दमन हुआ, लोकतंत्र के चारों स्तंभ को ध्वस्त कर दिया गया, सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में सिमट कर रह गई, रातों रात जनसेवक से तानाशाह बन गई। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को नजरबंद किया गया। राजनारायण, विजय राजे सिंधिया, चौधरी चरण सिंह, मोरारी जी देसाई, जीवन राम कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, जिस दिए ने सर उठाना चाहा उसे मसल कर बुझा दिया गया। 50 साल पहले 24 जून 1975 की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी और एक प्रकार से सबसे छोटी थी। सबसे लंबी इसलिए क्योंकि इस रात की सुबह 21 महीनों बाद आई थी और सबसे छोटी इसलिए कि जिन अधिकारों को, विधिक प्रक्रियाओं को, पार्लियामेंट की पवित्रता को, नागरिक संरक्षण नियमों को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 13 समितियों का गठन हुआ, 165 दिन में 11 सत्र संपन्न हुए। जिस संविधान के निर्माण में दुनिया भर के लोकतंत्र की संविधान से ज्यादा विचार विमर्श हुए, इतना त्याग, तपस्या, परिश्रम सैकड़ों लोगों ने किया कि जिन कैबिनेट के फरमान ने उसे 1 मिनट में खारिज कर दिया। ये दौर सबक दे गया कि संविधान की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई नेता या सरकार इससे ऊपर हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। बता गया कि जहाँ प्रेस और अदालतें स्वतंत्र हैं, वहाँ का लोकतंत्र सुरक्षित है। सजग जनता ही तानाशाह को रोक सकती है और विपक्ष का सम्मान लोकतंत्र का प्रतीक है। This emergency was the biggest mistake in the history of the India, and mistakes are not meant to be forgotten. They are meant to be learned from and राजप्रिय प्रजा दुखारी, सोने पर अवश्य नरक अधिकारी। जिस शासक के राज में प्रजा दुखी रहे, वह नरक का अधिकारी होता है।
25 जून 1975 यह कोई साधारण तारीख नहीं, यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रखी गई सबसे बड़ी धरती थी। ऑनरेबल चेयरपर्सन, रेस्पेक्टेड जजेस और मेरे प्यारे डेलीगेट्स, क्या आपको याद है जब भारत में आवास उठाना अपराध था, जब दिल्ली के तुर्कमेन गेट पर हजारों गरीबों के घर उजाड़ दिए गए थे ब्यूटिफिकेशन के नाम पर और 60 लाख से ज्यादा लोगों को जबरदस्त फॉल्स नॉलेजाइजेशन झेलनी पड़ी थी और सत्य बोलने वालों को जेल में डाल दिया गया था। But now the thing is that after 50 years of emergency, what should we learn for Indian democracy? तब 1975 में ना ही सोशल मीडिया था और ना ही स्मार्ट मोबाइल्स थे, लेकिन हिम्मत थी और लोकतंत्र को बचाने की आग थी। अगर आज का युवा उस सिचुएशन से गुजरा होता तो ज्यादातर युवा स्टोरी और स्टेटस डालते कि इस मैसेज को आप जितना जल्दी शेयर करोगे इमरजेंसी उतनी ही जल्दी घटेगी और 24 घंटे बाद भूल भी जाते। यह सत्य है कि जहां 1975 का युवा लोकतंत्र के लिए दूसरों से लड़ रहे थे, वहीं आज का युवा अपने आप से लड़ता है डिस्ट्रैक्शन और मोबाइल से आजाद होने के लिए। तब 1975 में आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहाना बनाया गया था लोकतंत्र को सस्पेंड करने के लिए। लेकिन आज इमरजेंसी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन डिजिटल इमरजेंसी का खतरा है जहां सेंसरशिप एल्गोरिथम बन गई थी। तब न्यूज़पेपर्स बंद कर दिए गए थे, आज जो सच होता है उसको फेक न्यूज किशोर में दबाया जाता है। तब हबीस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का हक छीना गया था, आज भी जब न्याय देर से मिलता है तो न्यायपालिका कमजोर पड़ जाती है। तब सारा का सारा अपोजिशन जेल में डाल दिया गया था, लेकिन आज खिलाफ आवाज उठाने वालों को देशद्रोही एंटी नेशनल कहा जाता है। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग माय फ्रेंड्स, स्ट्रांग अपोजिशन भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी की असली पहचान होती है। 2026 का सबसे बड़ा लेसन यही है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और जागरूक नागरिक, तभी डेमोक्रेसी बची रहेगी। शक्ति का मतलब लोगों को दबाना नहीं, शक्ति का मतलब लोगों की रक्षा करना होता है। 1977 में जनता जाग उठी और बैलेट की छोटी सी पेंसिल ने तानाशाही की घर गिरा दी, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है। और आज भारत में 140 करोड़ से भी ज्यादा देशवासी निवास करते हैं। क्या इस बात पर हमें खुश होना चाहिए? नहीं, हमें तब खुश होना चाहिए जब इन्हीं 140 करोड़ देशवासियों की एक सोच। यहाँ पर उपस्थित सभी युवा साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐतिहासिक विषय पर चर्चा करने के लिए, जो है आपातकाल के 50 वर्ष एवं भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। कहने को तो भारत को आजादी सन 1947 में मिली, पर आजादी के बाद भी हमारे लोकतंत्र को कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उनमें से सबसे गंभीर परीक्षा थी आपातकाल, जिसे भारतीय इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। यह 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की। यह आपातकाल 21 महीने चला। इस 21 महीनों के अंदर नागरिकों से मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की, मीडिया की स्वतंत्रता लगभग समाप्त कर दी गई और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि लोकतंत्र के स्तंभ जिन्हों कहा जाता है, संसद एवं न्यायपालिकाओं की शक्तियां भी सीमित कर दी गई। यही नहीं, और सुनिए, यहाँ तक कि अमानवीय घटनाएं भी हुई। अमानवीय घटनाएं हुई। वह दौर वह था जिसमें एक ही सिक्के पे दोनों पहलुओं पर एक ही जवाब था, उसको उछाला जा रहा था, उत्तर एक ही आना था, वो था इंदिरा। आपातकाल को लगाने के पीछे कुछ यह कारण दिए जाते हैं। देश आर्थिक स्थिति का संकट, देश में आंतरिक अशांति, लेकिन असली कोर वास्तविकता तो यह थी कि सत्ता को बचाए रखने के लिए लोकतंत्र का बलिदान किया गया था। आज मैं 2 लाइन याद आ रही है, मैं वो ऐड करना चाहूंगा। अगर बात मैं खुद वो लाइन वापस कर देना चाहूंगा। अगर बात मेरे खुद के समझौते की होती तो हमारे समक्ष बैठे युवा साथी, आज का विषय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक। मान्यवर सबक है नई विचारधारा का, मान्यवर सबक है नव निर्माण का, मान्यवर सबक है नई ऊर्जा का, और मान्यवर सबक है युवा शक्ति का राजनीति में होना। मान्यवर आज हम सभी संकल्प को लेकर आए हैं, जो 21 जून 1975 के आपातकाल के समय लगाई गई थी, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सबक है। सबक है कि किस प्रकार से सत्ता ने अपनी न्यायपालिका शक्ति से लेकर लोगों की नागरिकता, उनके मौलिक अधिकारों को छीन लिया था। मान्यवर 21 महीने के इस कालखंड में लोगों की मौलिक अधिकार छीन लिया गया था और भविष्य का परिणाम यह हुआ कि जो पार्टी 70 साल तक सत्ता में
एक नई विचारधारा को लेकर आज आप और हम एकत्रित होंगे। नए निर्माण में नई विचारधारा का एक ऐसा योजना की ढांचे को प्रदान करना है जो 2047 के विजन को, विकसित भारत के विजन को पूर्ण कर सके। माननीय आज का विषय काफी गंभीर है, उसने सोचा और आपातकाल के समय जो 21 महीने का जो उन्होंने कालखंड देखा, जो निर्णय देखा, उनके नहीं अधिकार तक छीनने में अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सदन में संविधान की सर्वोपरिता, सदन में स्वतंत्र मीडिया की आवाज का होना, सदन में नए विचारधारा का होना और सदन में युवा शक्ति का राजनीति में होना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जब सत्ता घुंडी और सिंहासन बहरा हो जाता है, जब सत्ता घुंडी और सिंहासन बहरा हो जाता है, कलमों की आजादी पर भी बहरा हो जाता है और अंदर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, और अंदर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में, तब जनता को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में, तब जनता को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। Let's go back to a time when India, the largest democracy in the world, faced its darkest night. Yes, I am talking about the emergency of 1975, when a single declaration turns democracy into dictatorship. At that time, newspapers were censored, fundamental rights were taken, and many leaders were jailed. उस दौर में आवाजों को दबा दिया गया, परंतु जनता की आत्मा झुकी नहीं। जब आवाजों को दबाया गया, तब खामोशी ने इतिहास लिखा। जब अधिकार छीन लिए गए, तब जागरूकता ने जन्म लिया, और जब लोकतंत्र डगमगाया, तब जनता ने उसे संभाल लिया। Because India is not just a piece of land, it is a living spirit that breathes through every citizen who dare to say, "We, the people of India." The emergency of 1975 was the darkest chapter in our history, as we all know. But it taught us many lessons that shaped the India we live in today. Firstly, it showed us the danger of absolute power. It reminded us the importance of freedom. It highlighted the value of independent judiciary, media, and press. It also proved that the people are the real strength, they are the real power of democracy. 1975 ने हमारी आजादी को परखा, परंतु तोड़ा नहीं, क्योंकि भारत की मिट्टी डर को नहीं, बदलाव को जन्म देती है। हम उस देश के वासी हैं जहां विचारों से क्रांति होती है, जहां कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है, और जहां हर एक नागरिक संविधान का सैनिक है। As APJ Abdul Kalam said, young people should be trained as the guardian of our democracy. आज के युवाओं को यह समझना होगा कि उनका कार्य केवल शिक्षा, करियर या वोट देने तक ही सीमित नहीं है। It's about speaking truth, standing for justice, cautioning power, and protecting freedom, not just in word but with their actions. Because as long as India's youth speak, democracy will never die. I end with the words of Rabindranath Tagore, which goes like, "Where the mind is without fear and head is held high, into that heaven of freedom, let my country awake." Thank you, Jai Hind. जब राजनीति के गलियारे एक गति से होकर गुजरे और भारत का अंकुश शत्रु तलवारें गर्दन पर हो, तब धरा को देने उतर, तब धरा को देने उतर, स्वयं आकाश भी आता है और सिंहासन के प्रत्युत्तर में जब प्रकाश भी आता है। नमस्कार, मैं भारत की तरुणाई और आजाद भारत की राष्ट्र चेतना को जागृत करने वाले आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, बिना किसी भूमिका के मैं उस विषय पर आता हूँ जिसकी परिचर्चा है, तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सम्मानित श्रोताओं के समक्ष मैं मौजूद हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप आपका ये शब्द मैं जब भी सुनता हूँ तो मेरे जहन में 70 के दशक का वो दृश्य सामने आता है, जिसमें देश की राजधानी के केंद्र में या फिर यह कहूँ कि भारत के विभाग में किसी एक निरंकुश के जिद की खातिर न जाने कितने लोग बेदर हो गए। तो वही दूसरा पत्रकारिता पर अंकुश लगाकर विश्व के महत्वपूर्ण लोकतंत्र बलों पर पट्टी बांध गई। जहाँ एक बार देश की न्याय व्यवस्था की दरवाजे पर लगी, तो वही दूसरा तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली देश की युवा पीढ़ी को सलाखों के पीछे लेकर दे गया। लेकिन महोदय, जब भी आपातकाल के इतिहास को वर्तमान के तराजू में तोड़कर देखता हूँ
लिखा गया तो इससे ही मेरी सीख का परिणाम था कि लोकतंत्र में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। मान्यवर, मेरे कई साथी आपातकाल की कमियां तो बताएंगे और निश्चित रूप से लाजमी भी है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल में उस जानवर की भूमिका का निर्वहन किया है जिसने इस देश की जनता को जनशक्ति का एहसास करवाया है। अंततः इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने बयान साहब ने भी लिखा है कि मैं लहू में लथपथ होकर जंग के पथ पर डोल रहा हूँ, मैं लहू में लथपथ होकर जंग के पथ पर डोल रहा हूँ, शायद नया खुद खोलेगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय, निर्णायक समिति व सभी मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। 25 जून 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था और यहाँ आपातकाल लगाया गया तब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बड़े बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, प्रेस को दबाया गया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल के उनके साथ अन्याय किया गया था। और पहले ये जमीन फिर आसमां बनना है, पहले ये जमीन फिर आसमां बनना है, एक दिन फिर हमें जय प्रकाश बनना है। सर्वप्रथम मां वीणा वागेश्वरी को वंदन करता हूँ एवं भोज भारद्वाज को प्रणाम करता हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ, आज भी कहूंगा कि पिछले कई दशकों से गौरवशाली इतिहास समेटे हुए शिक्षा की इस पावन पुनीत धरा को प्रणाम करते हुए मेरे सामने आकार लगते हुए नवीन भारत के युवाओं एवं मंच पर उपस्थित सम्मान अधिकारीगण एवं अतिथिगण, आप सभी की उपस्थिति को रत्नान्वित करता हूँ। मैं बिना किसी भूमिका के उस विषय पर आता हूँ कि 25 जून 1975 की यह तारीख भारतीय लोकतंत्र में एक ऐसी रात के रूप में दर्ज हुई जब भारत के लोकतंत्र पर असाधारण संकट आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए, प्रेस स्वतंत्रता सीमित कर दी गई और अनेक विपक्षी नेताओं को कारावास में डाल दिया गया। आपातकाल केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा थी। सत्ता कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर जनता की जागरूकता और संविधान की मर्यादा सर्वोपरि है। अध्यक्ष महोदय, क्या सीखा हमने आपातकाल से? हमने सीखा कि जब राजपथ पर बैठा राजा यदि लोकतंत्र की प्रस्तावना भूल जाए तब जनता में बैठे किसी जयप्रकाश या राजनारायण का यह दायित्व है कि वो उनके लिए कर्तव्य पथ का रास्ता इंतजार करे। हमने सीखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान को जीवंत बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की क्या भूमिका है। महोदय, हमने सीखा कि विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में जन जागरूकता से बड़ी कोई जागरूकता नहीं है। मान्यवर, पीछे घूमकर लोकतांत्रिक इतिहास के काले अध्याय के इस पृष्ठ को जब भी पढ़ता हूँ तो तमाम चिंतन के बाद मुझे इस बात का फक्र जरूर होता है, जहाँ आज के दौर में किसी संप्रभु देश उनके राष्ट्राध्यक्ष अपहृत हो जाते हो, जन विद्रोह से किसी देश में लोकतंत्र पर सवाल खड़े होते हो, ऐसे में इतिहास का यह स्वर्णिम सौभाग्य रहा है कि तमाम यातनाओं के बाद भी हमारे पूर्वों ने विद्रोह का ऐसा तरीका नहीं चुना जिससे स्वाधीन भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठे। महोदय, हमने विद्रोह किया तो ऐसा कि आपातकाल जैसे कदम उठाने वाले सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी पश्चाताप के दबाव में तपने लगे। हमने विद्रोह किया तो ऐसा कि जनता में सत्ता का परिवर्तन लोकतांत्रिक मार्ग से किया। हमने विद्रोह किया तो ऐसा कि हम इतिहास के दर्ज हुए न कि इतिहास बने। जब चाहा था अंधकार देना, स्वतंत्रता का दीपक डोला था, शब्दों पर पहला बैठा था, सत्य कहीं कोने में रोया था, पर जनता ने भी खाली थी, मत की ताकत से दिखलाया था। हमारी आजादी की रफ्तार छीनने की कोशिश की, भारत की जनता उखड़ी हुई और कहा हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं और स्वतंत्र रहेंगे। माननीय मंचासन अतिथिगण और मेरे समक्ष बैठे अभिभावकों एवं युवाओं और निष्पक्ष निर्णायक मंडल को मेरा सादर वंदन। मैं आज आप सबके समक्ष भारत के इतिहास के उस काले अध्याय पर अपने विचार प्रकट करने आया हूँ जिसकी गूंज आज भी हमारे लोकतंत्र में सुनाई देती है। माननीय महोदय, भारत का व्यक्ति आजादी को केवल एकमात्र अधिकार ही नहीं बल्कि अपनी पहचान मानता है, लेकिन 25 जून 1975 की रात यह आजादी सीमित कर दी गई। यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई जब लोकतंत्र पर ताला लगा दिया गया और तब सवाल थे, क्या देश के लोगों की आवाज सच में आजाद है? इस आपातकाल के कारण देश में तत्कालीन सरकार का तेज विरोध प्रदर्शन हुआ और आज वो उस विरोध प्रदर्शन की बात करें माननीय, तो मुझे आज भी
का मुख्य कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी को चुनौती दे दी। तत्कालीन सरकार ने इसे आंतरिक अशांति कहा, लेकिन ये देश के लोकतंत्र पर गहरा प्रहार था महोदय, गहरा प्रहार था। इस आपातकाल के 21 माह के कालचक्र में बहुत सी अलोकतांत्रिक घटनाएं हुई, लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए, मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई और बिना किसी विरोध के सरकार द्वारा नीतियां लागू कर दी गई और बड़े बड़े विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण अडवाणी तक को जेल में डाल दिया गया। लेकिन महोदय, हर एक बुरा काल, हर एक बुरा समय हमें बहुत से सीख, बहुत से सबक भी देता है। इस आपातकाल ने देश को बड़ी सीखे, बड़े सबक दिए। इस आपातकाल ने बताया कि जनता सर्वोपरि है, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी पार्टी जनता के आदेश से बड़ी नहीं, संविधान सर्वोच्च है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आंखें हैं। जब कलम बंद हो जाती है तब सच्चाई छुप जाती है। महोदय, सिस्टम में शक्तियों का संतुलन भी आवश्यक है। जब मीडिया, न्यायपालिका और संसद स्वतंत्र होते हैं तभी लोकतंत्र जीवित रहता है। आज इस आपातकाल के 50 वर्ष बाद हम यहाँ पर केवल इतिहास याद करते या चर्चा करते एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि हम यह संकल्प लेने एकत्रित हुए हैं कि हम इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं, हम इसकी आवाज हैं और ये आवाज कभी दब नहीं सकती महोदय, कभी दब नहीं सकती। आइए सब मिलकर अपने संविधान, अपनी आजादी व अपने मूल्यों की रक्षा का उत्तरम यस्य समुद्रस्य हिमालयस्य दक्षिणम तद भारतम नाम भारते यस्य संस्कृति। अर्थात यह भारत देश जिसके उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र है और यहाँ रहने वाले हम भारतीय यहाँ रहते हैं। मैं दिया जाऊं, मैं वार्ड नंबर 13 आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ उपस्थित मान्यवरों को तथा सामर्थ्यशाली युवा शक्ति को मैं सहृदय प्रणाम करती हूँ। Relax, this is just a blank white piece of paper which represents the future of India and I have the pen. Yes, the youth of India has the pen and it depends on the youth as what it wants to take down on this white sheet of paper. आज 50 साल बाद मैं भारत के इतिहास का पुकारा पन्ना फिर से खोलना चाहती हूँ। तारीख थी 25 जून 1975 जब भारत के लोकतंत्र के हाथ पैर तोड़कर उसे 21 महीनों के लिए खुदगर्जी की कालकोठरी में सड़ने गलने व मरने के लिए फेंक दिया गया था। सन 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में जब रायबरेली से इंदिरा गांधी जी खड़ी हुई और बहुमत के साथ जीती, तभी विपक्षी राजनारायण जी ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट इन 1951 की धारा 123 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जीत को निरस्त कर दिया। और फिर 25 जून 1975 की आधी रात से पहले ही इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद की सहमति से आंतरिक आपातकाल का फरमान जारी करा दिया। तभी मुझे कवि नागार्जुन जी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि इंदु जी क्या हुआ आपको, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गए बाप को, बेटे को तार दिया बोल दिया बाप को, क्या हुआ आपको। मजाक से हटकर यदि मैं बात करूं तो आपातकाल के समय लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई थी, मासूमों पर नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया था। लेकिन जब जनता का गुस्सा फूटा तो इंदिरा जी भी ना बच पाई और 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में पूरी तरह परास्त हुई। तभी मोरारजी देसाई के प्रतिनिधित्व में भारत की पहली गैर कांग्रेसी सत्ता आई। नेताओं के लिए सबक है कि लोकप्रियता के बावजूद भी यदि वे जनता की उम्मीदों पर खरे ना उतरे तो बड़े से बड़ा दाव भी उल्टा पड़ सकता है। और आपातकाल भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी और भूल भुलाने के लिए नहीं बल्कि सबक लेने के लिए होती है। And for that, the youth of India needs to be real heroes instead of real heroes. It should follow Saint Kabir, not Kabir Singh. And youth of India need to face Facebook instead of Facebook. और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत की सो कॉल्ड जेन ज़ी पीढ़ी नेपाल की तरफ यहाँ आपातकाल। माननीय शिक्षकगण और निर्णायक समिति और मेरे प्यारे सहभागी, आज हम सबकी चर्चा का विषय केवल एक ही है कि आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे भारत के लोकतंत्र को क्या सबक मिले।
तो बात है ये आपातकाल। ये शब्द ही इतना काला अध्याय के रूप में जाना गया है कि जिसको हम शब्दों में शायद ही बयान कर पाए, क्योंकि बात है 25 जून 1975 की, जब हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। और इनके पीछे से इनका एक डर था अपनी सत्ता गंवाने का, और सत्ता गंवाने का डर भी इसलिए आया क्योंकि उन्हें उस समय के चुनावी कदाचारों में दोषी ठहराया गया था और उनकी संसद की सदस्यता को निरस्त करने की कगार पे थी। उनको अपनी सत्ता गंवाने का डर था और इस डर के कारण उन्होंने आपातकाल जैसे बड़े मतलब आपातकाल की घोषणा करवाई। और सिर्फ घोषणा करवाने तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद उसके अंतर्गत उस दौरान इतनी सारी घटनाएं हुई जिसमें लोग मतलब हमारी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, हमारी प्रेस, उसकी सेंसरशिप को उन्होंने खत्म किया। उनके अधिकारों की, उनकी अभिव्यक्ति की, हर प्रकार की जितनी भी स्वतंत्रता हमारा संविधान हमें देता है, सारी स्वतंत्रताओं को छीन लिया गया। और केवल प्रेस की नहीं, जो विपक्ष के नेता थे, जो भी सामान्य लोग इससे विद्रोह कर रहे थे, इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, उन सबको बिना किसी मुकदमे के जेल में बंद किया जा रहा था। और जिन्हें जेल में बंद नहीं किया जा रहा था, उन नसबंदी अभियान के तहत उनकी नसबंदियां करवाई जा रही थी जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के नाम पर। तो इस प्रकार इन्होंने आपातकाल को सिर्फ आपातकाल ना रहकर उन्होंने बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसका हम आज से बयान उसको बोल सकते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी जनता को इसके बाद एहसास हुआ कि हमारे अधिकार, हमारी अभिव्यक्ति हमारे लिए कितना महत्व रखती है। और इसका उन्होंने उस सत्ता को, जिसने की जनता को बाद में और सत्ता को पहले रखा, उसका जवाब उन्होंने 1977 के चुनाव में दिया, जब पहली बार उन्होंने भारत में गैर कांग्रेस सरकार मतलब बनाई उन्होंने। तो ये उनके मुंह में तमाचा था कि उन्होंने जनता को बाद में रखा और सत्ता को पहले रखा, कि हमेशा हमारा जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, वो किसी सत्ता का मोहताज नहीं है। हमारी जनता हमारी सत्ता खुद बना सकती है, और अगर जनता बनाने पे आए तो बना सकती है, और जनता बिगाड़ने पे आए तो बिगाड़ सकती है। और इसके साथ ही लोगों को अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागृत रहना चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति का, अपनी स्वतंत्रता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें हमारे संविधान में भी बहुत सारे संशोधन किए गए, जिससे कि आपातकाल ऐसे ही लागू नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत सारे नियमों की पालन करना होगा। आज आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जो एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा सबक रहा है। लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं होता, यह जनता की एक चेतना होता है। और जब चेतना पर ताला लगा जाए तो शासन चलता तो है पर राष्ट्र ठहर जाता है। आपातकाल उसी ठहराव का नाम है। उस समय देश की सीमाएं सुरक्षित थी, लेकिन नागरिक अधिकार असुरक्षित थे। सड़कों पर शांति थी, पर समाज में भय था।